Good morning, students. Now, in this lecture, we have to discuss solution of exercise 2.1. That is to find the principal values of a given inverse trigonometric functions. So, exercise. We are going to start exercise 2.1, in which we have to find the principal values. So, before discussing these principal values, we have to remember certain properties of inverse trigonometric function. Done? So, write down that properties. So here, if sine inverse minus sine theta is there, sine inverse minus sine theta is there, na? We are having the properties of sine inverse sine theta, but whenever you find sine inverse minus sine theta, you can directly put minus theta, na? Sine inverse minus sine theta, it is equal to minus sine theta. And when cos inverse minus cos theta is there, we can put pi minus theta. Cos inverse minus cos theta is equal to pi minus theta. है ना? प्रॉपर्टी हमने लिखी थी x के फॉर्म में, यहाँ पर मैं थीटा के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो कोई इश्यू नहीं है. So here for tan, if we are having tan inverse minus tan theta, we can directly put minus theta, minus of theta. And if cot inverse minus cot theta is there, we can replace this one as a pi minus theta, pi minus theta. Done. उसके बाद cosec. Suppose we are having cosec inverse minus cosec theta, we can write that is equal to minus theta. And sec inverse minus sec theta, that will be equal to pi minus theta. डन. तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है. दोनों मेथड से करेंगे, ये प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे और कल जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी उससे भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे. क्लियर फ्रेंड्स? आपको ये याद रखना है कि सिर्फ cos इनवर्स में माइनस आएगा, कोट में माइनस आएगा, या फिर sec इनवर्स में माइनस थीटा आएगा, उसको आपको पाई में से सब्ट्रैक्ट करके लिखना है. अदरवाइज बाकी तीनों के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए आपको माइनस थीटा डायरेक्ट लिखना है. डन. कैसे यूज करना है इक्वेशन में देखते जाएंगे. चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is sine inverse. Here we have to find the principal value of a sine inverse minus 1 by 2. Sine inverse minus 1 by 2. So here sine inverse minus 1 by 2. So we know that this 1 by 2 is, which value of sine is 1 by 2? It's a sine inverse minus sine pi by 6. Done. Here we are writing the reason. We know that sine pi by 6 equal to 1 by 2. 1 by 2 को रिप्लेस किया sin pi by 6 से. अभी देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, sin इनवर्स माइनस sin थीटा. देखो sin इनवर्स माइनस sin थीटा. So by using this property, what we can write? We can directly write this one is equal to minus pi by 6. This is equal to minus pi by 6. Done. लेकिन इसको हम अच्छी तरह से भी सोल्व करेंगे कि माइनस pi by 6 कैसे आया कल की प्रॉपर्टी को देख के. तो हियर यहाँ से फिर से ये स्टेप में आ जाओ. sin inverse. Now this minus sin pi by 6 can be written as sine of minus pi by 6. Done. Because we are having the property of sine inverse sin x, that will be equal to x if x belongs to its principal range minus a closed interval minus pi by 2 plus pi by 2. So here we can say this minus pi by 6 belongs to this principal range, and hence we can write this one is equal to minus pi by 6. देखो आंसर आ गया. Clear friends? So this is how, by using this both the methods, by using this one and by using this one, we can get the principal values. Done. और इसके साथ हम ये भी करेंगे कि जो भी क्वेश्चन दिए है उसको हम दोनों साइन से मेथड सोल्व करेंगे. यहाँ पर माइनस 1 by 2 दिया है. सपोज हमें दिया होता साइन इनवर्स 1 by 2, है ना. प्रैक्टिस के लिए ये भी करेंगे हम. तो माइनस साइन है तो प्लस साइन भी कंसिडर करो, इसको सोल्व करो तो क्या होगा. तो इट्स अ साइन इनवर्स 1 by 2 मींस साइन पाई बाय 6. डन. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया साइन इनवर्स साइन एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स, बिकॉज our x which is nothing but the pi by 6, that pi by 6 belongs to principal range, that is minus a closed interval minus pi by 2 plus pi by 2. डन. तो साइन इनवर्स 1 by 2 आएगा पाई बाय 6. क्लियर फ्रेंड्स? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. चलो
इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन वी आर गिवन दैट cos inverse root 3 by 2, cos inverse root 3 by 2. So here cos inverse, which value of cos is root 3 by 2? So it's a cos pi by 6. Now we know that cos pi by 6 is equal to root 3 by 2. So replacing this root 3 by 2 with cos pi by 6. Now this is our formula, cos inverse cos x, है ना, ये थी हमारी प्रॉपर्टी। Suppose we are having cos inverse cos x, that will be equal to x when x belongs to principal range of cos, that is closed interval 0 to pi. So here we can see that this pi by 6 belongs to closed interval 0 to pi. So this is equal to pi by 6. यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे, this pi by 6 belongs to closed interval 0 to pi. Hence cos inverse cos pi by 6 equal to pi by 6. डन। नेगेटिव साइन आएगी तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है। लेकिन हमने बोला है कि प्रैक्टिस के लिए जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्वेश्चन की हम दोनों साइन कंसीडर करेंगे। तो लेट्स ट्राई दिस वन, cos इनवर्स माइनस रूट 3 by 2। सपोज यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस होगा तो वो प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। सो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस वन इज cos इनवर्स माइनस रूट 3 by 2 इज cos pi by 6. So this one is cos pi by 6. Done. Now cos इनवर्स माइनस cos pi by 6, ये प्रॉपर्टी देखो, cos इनवर्स माइनस cos थीटा, cos के आगे माइनस आ गया तो क्या करेंगे, पाई में से वो एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हियर वी कैन डायरेक्टली राइट आवर आंसर पाई माइनस पाई बाय 6 एंड दैट इज इक्वल टू 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6। डन। ये वाली प्रॉपर्टी से, या फिर हमारी जो प्रॉपर्टी वाली मेथड है उसमें आगे बढ़े तो क्या होगा, इससे आगे दिस वन इज cos इनवर्स माइनस cos पाई बाय 6, है ना। यहाँ पे तो cos इनवर्स cos है, प्लस साइन होनी चाहिए, ये माइनस साइन को रिमूव करना पड़ेगा, ये एंगल को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और इसको 0 टू पाई के बीच में लेके आना पड़ेगा। सो हियर cos को हम अंदर माइनस पाई बाय 6 करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन वो रेंज में नहीं आएगा तो कुछ काम का नहीं है। तो cos नेगेटिव कहाँ पर होता है, देखो cos नेगेटिव कहाँ पर होता है, तो ये हमारा क्वाड्रेंट था ऑल एच टी सी। सो हियर cos इज नेगेटिव, है ना, यहाँ पर सारे पॉजिटिव, यहाँ पर भी cos पॉजिटिव, यहाँ पर cos हमारा नेगेटिव था। तो ये जो पाई बाय 6 है उसको हम पाई माइनस पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं और पाई प्लस पाई बाय 6 ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी cos नेगेटिव, यहाँ पर भी cos नेगेटिव, ये cos नेगेटिव दोनों प्लेस पर है, लेकिन पाई प्लस पाई बाय 6 करेंगे तो फिर से 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 इसके रेंज में नहीं आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन कंसिडर करेंगे, ये वाला। तो एक cos को नेगेटिव करने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट को अज्यूम करेंगे, दैट इज cos पाई माइनस पाई बाय 6। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, so this is equal to cos inverse cos 6 pi minus pi 5 pi by 6. So here cos inverse cos x is there, where x belongs to 0 to pi, check it, है ना, 5 pi by 6 is 0, lies between closed interval 0 to pi, so our answer is 5 pi by 6. रीजन लिखेंगे कि 5 pi by 6 belongs to closed interval 0 to pi. Done. So this is how we can solve these questions by using this property as well as by using क्या बोलते हैं इसको, कल वाली प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी वो दोनों को यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डन। चलो थर्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ड होता जाएगा। सो क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन cosec इनवर्स 2 इज देयर, cosec इनवर्स 2 इज देयर। तो चलो क्या करेंगे इसका, cosec इनवर्स 2, cosec 2 कब होता है ना, cosec पाई बाय 6 की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पर 2 को रिप्लेस करेंगे cosec पाई बाय 6 से, cosec पाई बाय 6। डन। और cosec की रेंज क्या होती है, प्रिंसिपल रेंज, तो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 6 बिकॉज और पाई बाय 6 बिलोंग्स टू, है ना, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस 0। डन। प्रॉपर्टी यूज की, क्या प्रॉपर्टी थी cosec की, ऐसा था cosec इनवर्स
cosec x equal to x when x belongs to close interval minus pi by 2 minus 0, ये था। तो पाई बाय 6। नाउ नेगेटिव साइन भी कंसिडर करेंगे हम, जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है लेकिन हम खुद से कर रहे हैं। तो -2 साइन कंसिडर कर ले। -2 के लिए देखो, दिस वन इज cosec इनवर्स माइनस माइनस, ये 2 की प्लेस पर क्या लिखेंगे, cosec पाई बाय 6, डन। और cosec इनवर्स माइनस cosec थीटा का क्या लिखा हमने, cosec इनवर्स माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा। तो इसको हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी का यूज करके, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करके आंसर देंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। अगर ये नहीं करना है तो कल वाली प्रॉपर्टी, उसमें हम क्या कर रहे थे, ये जो एंगल है उसको ट्रांसफॉर्म करके हमारी रेंज में लेके आएंगे, है ना। हमारा फॉर्मेट होता है cosec इनवर्स cosec x, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव लिए इसको क्या करेंगे, cosec माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे, माइनस पाई बाय 6 हमारी रेंज में आ गया। सो दिस इज इक्वल टू minus pi by 6 because this minus pi by 6 belongs to principal range of this cosec, that is minus pi by 2 plus pi by 2, है ना। ये आपको रीजन हर एक क्वेश्चन में लिखना है, डन। तो एक cosec वाला सम ये मेथड से भी होगा और ये मेथड से भी होगा, और क्वेश्चन में तो ये बिल्कुल सा इजी दिया हुआ है, वो आप इजीली कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट आप लिखेंगे और नोट डाउन करेंगे। चलो फोर्थ क्वेश्चन। सो हियर वी आर गिवन tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखो, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री कहां पर होता है, tan पाई बाय 3 इज इक्वल टू रूट थ्री, है ना। पाई बाय 3 की वैल्यू रूट थ्री होती है। सो हियर दिस इज माइनस 10 पाई बाय 3, माइनस 10 पाई बाय 3, माइनस आ गया। तो माइनस के लिए पहले प्रॉपर्टी ये थी कि tan इनवर्स माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस थीटा लिख सकते हो डायरेक्ट। तो दिस इज इक्वल टू, है ना, प्रॉपर्टी का यूज करके इसका डायरेक्ट हम आंसर डायरेक्ट लिख पाएंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3। लेकिन ये नहीं करना है, हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना, क्योंकि ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था tan इनवर्स tan x इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। तो यहाँ पर तो प्लस होना चाहिए, तो ये माइनस साइन को अंदर लेंगे, माइनस पाई बाय 3 होगा, इसके अंदर आ जाएगा। सो हियर tan इनवर्स 10 माइनस पाई बाय 3, डन। कोड इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी है। सो दिस वन इज डायरेक्टली माइनस पाई बाय 3। इसका आंसर रीजन क्या आएगा, बिकॉज माइनस पाई बाय 3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2। ये जो एंगल है ना, वो tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग करता है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर ये लिखेंगे, डन। तो ये प्लस साइन माइनस साइन के लिए हो गया, अभी इसको करेंगे प्लस साइन के लिए। सपोज वी आर गिवन tan इनवर्स रूट थ्री ओनली, तो ये तो बिल्कुल सिंपल, रूट थ्री की वैल्यू रिप्लेस करेंगे ये वाले इक्वेशन से। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट थ्री इज 10 पाई बाय 3। तो tan इनवर्स 10x आ गया, tan इनवर्स 10x इक्वल टू x, बिकॉज अवर x इज belongs to minus pi by 2 pi by 2. So this is equal to pi by 3. This is equal to pi by 3. Reason is pi by 3 belongs to principal range of tan inverse, which is minus pi by 2 plus pi by 2. Clear students? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, है ना। साथ में ये सब नोट डाउन करते रहो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 is cos inverse. We are given cos inverse minus 1 by 2. Done. Cos inverse minus 1 by 2. So here, which value of cos is 1 by 2? Cos pi by 3 is 1 by 2. Done. Cos pi by 3 is 1 by 2. So here we can replace this 1 by 2. Cos inverse minus 1 by 2. Replace 1 by 2 with cos pi by 3. Done. तो देखो cos inverse minus cos थीटा आ गया, cos इनवर्स माइनस cos थीटा, तो इसका क्या होगा डायरेक्ट
प्रॉपर्टी, वो वाली प्रॉपर्टी का यूज करके cos इनवर्स माइनस cos थीटा है, इसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट्स पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये आंसर आ गया 2 पाई बाय 3। ये डायरेक्ट शॉर्टकट वाली मेथड डन, लेकिन शॉर्टकट नहीं, हम तो डायरेक्ट आगे जाएंगे। तो देखो ये cos इनवर्स माइनस cos है, लेकिन cos की जो प्रॉपर्टी कल लिखी थी हमने वो थी cos इनवर्स cos x इक्वल टू x। कब x आएगा? when x belongs to क्लोज इंटरवल 0 to पाई, डन, क्लोज इंटरवल 0 to पाई के बीच में। अगर ये माइनस को अंदर घुसा दे यहाँ पर माइनस पाई बाई 3, तो ये रेंज में नहीं आएगा, तो वो काम हम नहीं करेंगे। डन, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो cos इनवर्स cos नेगेटिव, इसके आगे वाले सब में देखा था cos नेगेटिव कहाँ पर होता है, दो ऑप्शन, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, पाई प्लस करो या पाई माइनस करो। पाई प्लस करेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 3 और फिर से 4 पाई बाई 3 आएगा, इसके रेंज में नहीं आएगा, तो दूसरा ऑप्शन करना पड़ेगा पाई माइनस पाई बाई 3, सेकंड ऑप्शन ही लेना पड़ेगा, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट। तो दिस वन इज cos पाई माइनस पाई बाई 3, cos पाई माइनस पाई बाई 3 इज माइनस cos पाई बाई 3, so this is equal to cos inverse cos 3 पाई माइनस पाई, इट्स अ 2 पाई बाई 3। अभी इसको चेक करो, cos इनवर्स cos x, तो x आएगा, है ना, x इज 2 पाई बाई 3। इसका रीजन क्या हुआ, बिकॉज 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू प्रिंसिपल रेंज ऑफ cos 0 to पाई। डन, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन हम खुद से क्या कर रहे हैं, सारी साइन कंसिडर कर रहे हैं, तो इसकी पॉजिटिव साइन भी कंसिडर करेंगे। सो हियर cos inverse minus cos inverse 1 by 2 is there, पॉजिटिव साइन, तो ये तो सिंपल पॉजिटिव साइन, cos inverse 1 by 2, 1 by 2 is cos pi by 3, cos pi by 3, और pi by 3 की बात करें तो रेंज में आ गया, सो दिस इज इक्वल टू pi by 3, है ना। cos इनवर्स cos x, ये बात कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू x, क्यों, क्योंकि x ये प्रिंसिपल रेंज में है। देखो pi by 3 बिलोंग्स टू प्रिंसिपल रेंज, दैट इज क्लोज इंटरवल 0 to पाई। डन, तो ऐसे होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, है ना, पूरी एक्सरसाइज करनी है, सारे क्वेश्चन एक ही मेथड के हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन करेंगे, कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। 6 टेन इनवर्स माइनस 1 आया, देखो तो 10 की कौन सी वैल्यू 1 होती है, तो सबको पता है हमें, लेकिन पता होने के बावजूद भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो वो नहीं करना है हमें, है ना। 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 1, तो ये 1 को रिप्लेस करेंगे 10 पाई बाई 4 से, सो दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस 1 इक्वल टू 10 पाई बाई 4। यहाँ पर नजर करो, 10 इनवर्स माइनस टेन थीटा इक्वल टू माइनस थीटा, सो दिस इज 10 इनवर्स माइनस टेन थीटा, सो दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। ये हमारा शॉर्टकट मेथड हो गया उसके हिसाब से, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से इसको डिराइव करेंगे। सो 10 इनवर्स, है ना, 10 इनवर्स माइनस 10x, तो 10 इनवर्स की जो प्रॉपर्टी कल लिखवाई थी वो ऐसी थी, 10 इनवर्स 10x इक्वल टू x when x belongs to ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, है ना। तो ये माइनस साइन को हम अंदर ले जाएंगे, है ना, अंदर ले जाएंगे तो माइनस पाई बाई 4 होगा, तो इसके अंदर आ जाएगा, तो दिस वन इज 10 माइनस पाई बाई 4, सो 10 इनवर्स 10x, दिस इज अवर x, and that is equal to minus pi by 4, because this minus pi by 4 belongs to open interval minus pi by 2 प्लस पाई बाई 2, तो ये माइनस पाई बाई 4 आ गया, माइनस पाई बाई 4 आ गया, है ना। दोनों में से किसी एक मेथड से आप एग्जाम में कर सकते हो, और साथ में हम इसकी प्लस साइन भी कंसिडर करेंगे। सो 10 इनवर्स 1 क्या होगा, सो 10 इनवर्स 1 इज नथिंग बट 10 पाई बाई 4, क्या होगा 10 पाई बाई 4, 10 इनवर्स 10x, और ये x हमारा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में है, ऑब्वियसली है, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4, साथ में रीजन लिखेंगे पाई बाई 4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, सबको समझ में आ गया अभी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7,
here we are given sec inverse 2 by root 3, sec inverse 2 by root 3. So which value of sec is 2 by root 3? Sec pi by 6 is 2 by root 3 है ना, sec pi by 6 is root 2 by root 3. So this is equal to sec inverse 2 by root 3 sec pi by 6 sec inverse sec pi by 6 है ना. sec inverse sec pi by 6 की प्रॉपर्टी क्या थी? ये थी शायद sec inverse sec inverse sec x equal to x when x belongs to close interval 0 to pi minus pi by 2. डन, ये होनी चाहिए. सो ये sec की प्रॉपर्टी थी. सो हियर pi by 6 इसके रेंज में आ गया है. तो दिस इज इक्वल टू pi by 6. इसका आंसर आएगा pi by 6. रीजन भी लिखना है कि pi by 6 बिलोंग टू 0 to pi माइनस pi by 2. डन. पॉजिटिव साइन तो सिंपल है, नेगेटिव साइन में कुछ करना हो तो कर सकते हैं. तो नेगेटिव साइन कंसिडर करें sec की. तो sec इनवर्स सपोज माइनस 2 अपॉन रूट 3 इज गिवन है ना. प्लस की जगह पर सपोज माइनस क्वेश्चन में आ गया एग्जाम में, तो क्या करेंगे? तो इसको ऐसे करेंगे sec इनवर्स माइनस 2 अपॉन रूट 3 sec पाई बाय 6. अभी ये चेक करो, sec माइनस sec पाई बाय 6 ये रहा. पाई में से सब्ट्रैक्ट करना है ना, पाई में से एंगल सब्ट्रैक्ट करना है. ये तो शॉर्टकट डायरेक्ट आंसर पाई माइनस पाई बाय 6. तो इसका आंसर आ गया पाई बाय 6. लेकिन प्रॉपर्टी चेक करनी है. तो यहाँ पर है ना sec इनवर्स sec x था प्लस था माइनस है, तो माइनस पाई बाय 6 को अंदर ले जाएंगे तो ये रेंज में नहीं आएगा. तो ये sec कुछ काम का नहीं है. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पाई माइनस पाई बाय 6 करें. सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आए sec इनवर्स sec पाई माइनस पाई बाय 6. सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव हो गया. सो दिस इज इक्वल टू sec इनवर्स sec 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6. अभी ये 5 पाई बाय 6 को चेक करो तो 0 टू पाई के बीच में है ना, वो माइनस पाई बाय 2 भी नहीं है. सो दिस इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6. देखो सेम आंसर आ गया. डन. सो दिस 5 पाई बाय 6 रीजन लिखना पड़ेगा. 5 पाई बाय 6 बिलोंग्स टू प्रिंसिपल रेंज ऑफ sec that is close interval 0 to pi minus pi by 2. Clear friends? So this is how we can solve this question number 7. Question number 7. Okay, now question number 8. 8 को देखो चलो. Cot inverse root 3 is given. So which value of cot is root 3? Cot पाई बाय 6 इज रूट 3. तो ये रूट 3 को रिप्लेस करेंगे cot पाई बाय 6 से. तो दिस वन इज cot इनवर्स cot पाई बाय 6 है ना. अभी यहाँ पर तो हम डेफिनेशन यूज करेंगे cot की. क्या प्रॉपर्टी थी? cot इनवर्स cot x इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई. तो पाई बाय 6 ओपन इंटरवल 0 टू पाई के बीच में है. तो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 6 और रीजन लिखेंगे पाई बाय 6 बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई है ना. प्रिंसिपल रेंज ऑफ cot 0 टू पाई. ये तो सिंपल हो गया. चलो अभी कुछ तूफानी करते हैं. सो cot इनवर्स माइनस रूट 3 माइनस साइन लेके कुछ करते हैं. चलो तो cot इनवर्स माइनस रूट 3 माइनस ये रहा cot पाई बाय 6 cot पाई बाय 6. So cot इनवर्स माइनस cot पाई बाय 6 cot इनवर्स माइनस cot थीटा cot इनवर्स माइनस cot थीटा. तो क्या करेंगे? पाई माइनस थीटा करेंगे. तो ये हमारी शॉर्टकट हो गई ट्रिक. पाई माइनस पाई बाय 6 पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 6 है ना. ये तो शॉर्टकट से आंसर दे दिया, लेकिन हमने बोला था हम कुछ तूफानी करेंगे. चलो तूफानी करते हैं. सो cot इनवर्स देखो आप बोलेंगे सर ऐसा माइनस साइन को अंदर ले लो ना. तो माइनस पाई बाय 6 यहाँ पर आएगा. तो यहाँ पर इसको माइनस अंदर नहीं ले सकते है ना. इसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे एंगल में. तो कौन सा एंगल करेंगे? cot इनवर्स cot सेकंड क्वाड्रेंट में ही लेंगे पाई माइनस पाई बाय 6. डन. तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव, तो ये हो गया cot इनवर्स cot 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6. तो cot इनवर्स cot 5 पाई बाय 6 ये फॉर्म में आ गया. और आप एंगल को चेक करो
तो ये 5 पाई/6 0 to पाई के बीच में है ना। 5 पाई/6 lies in the range of open interval 0 to pi. So here we can write 5 pi/6, and this 5 pi/6 belongs to open interval 0 to pi. That is principal range of this cot inverse. Cot inverse की principal range में है। डन, आ गया ना सब, प्लस माइनस साइन शॉर्टकट। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो अभी। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, cos inverse minus 1 upon root 3. Question number 9. So here we are given cos inverse minus 1 upon root 2, minus 1 upon root 2. तो cos की कौन सी वैल्यू 1 upon root 2 होती है? cos pi/4 is 1 upon root 2. तो 1 upon root 2 को रिप्लेस करेंगे cos से। So this one is cos inverse minus 1 upon root 2. 1 upon root 2 is cos pi/4। देखो एक cos इनवर्स माइनस cos थीटा आ गया, cos इनवर्स माइनस cos थीटा, पाई में से सब्ट्रैक्ट करो, डायरेक्ट आंसर। तो दिस इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, थीटा इज pi/4, थीटा इज pi/4, दिस इज इक्वल टू 3 pi/4। शॉर्टकट, लेकिन शॉर्टकट के आगे कुछ भी कुछ होता है ना, डर के आगे जीत है, तो इससे डरना नहीं है, आगे बढ़ो। सो cos को माइनस pi/4 करो, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ cos, है ना, अभी आपको याद रह गई होगी, cos इनवर्स cos x equal to x where x belongs to closed interval 0 to pi। तो ये माइनस साइन को अंदर ले ले तो माइनस pi/4 ये इंटरवल में नहीं आएगा, है ना। तो इसको हम सेकंड क्वार्टर में लिखेंगे cos pi minus pi/4। सो दिस वन इज cos इनवर्स, cos pi minus pi/4 करो तो माइनस pi/4 आ जाएगा ना, cos minus pi/4। तो ये 4 pi minus pi 3 pi/4। अभी इसको चेक करो, cos इनवर्स cos x, इसके साथ कंपेयर करो तो डायरेक्टली x लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो x है ना 3 pi/4, दैट 3 pi/4 लाइज इन द प्रिंसिपल रेंज ऑफ cos, दैट इज क्लोज इंटरवल 0 to pi। डन, ये माइनस साइन तो दिया हुआ है, अभी प्लस साइन लेके करते हैं। प्लस साइन में तो कुछ नहीं होता है, cos इनवर्स 1 upon root 2, तो बोलो क्या होगा? cos इनवर्स 1 upon root 2, 1 upon root 2 is cos pi/4, cos pi/4। चेक करो, cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, एंड दिस इज इक्वल टू pi/4। ऐसा क्यों किया? क्योंकि pi/4 इसके अंदर आ गया। रीजन इज pi/4 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to pi। डन, तो ऐसे होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन। ले लिया सबने? चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10th क्वेश्चन। सो हियर वी आर गिवन cosec इनवर्स, cosec इनवर्स माइनस रूट 2। तो cosec की कौन सी वैल्यू रूट 2 होती है? सो हियर वी कैन से cosec pi/4 इज रूट 2, है ना। cosec वाला सम पहली बार आया, आई थिंक एक बार आ गया बीच में। ओके चलो, cosec इनवर्स माइनस रूट 2, तो दिस वन इज cosec इनवर्स माइनस रूट 2, रूट 2 को रिप्लेस करना है cosec, माइनस cosec pi/4 से। तो चलो cosec इनवर्स माइनस cos थीटा, है ना, cosec इनवर्स माइनस cos थीटा, तो क्या आएगा? माइनस थीटा। तो इसका डायरेक्ट आंसर शॉर्टकट में से बोलेंगे कि दिस इज इक्वल टू माइनस pi/4। लेकिन आगे हमें करना हो तो क्या करेंगे? cosec की डेफिनेशन चाहिए, तो cosec की डेफिनेशन ये रही, cosec इनवर्स cosec x इक्वल टू x when x belongs to a closed interval minus pi/2 pi/2 माइनस 0। ये cosec की डेफिनेशन। तो इसको अंदर ले ले साइन को, माइनस pi/4 इसके रेंज में आ जाएगा, तो सिंपल काम हो गया हमारा। तो दिस वन इज cosec इनवर्स cosec माइनस pi/4। डन। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन cosec इनवर्स cosec x दिस इज इक्वल टू माइनस pi/4, क्योंकि ये माइनस pi/4 इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पर रीजन लिखेंगे माइनस pi/4 बिलोंग्स टू माइनस pi/2 प्लस pi/2 माइनस 0। डन। तो शॉर्टकट हो गया, अच्छा वाला तरीका भी हो गया। अभी प्लस साइन लेंगे, प्लस साइन
है ना, इसकी प्लस साइन ले, चलो कुछ नहीं होगा, इजीली हो जाएगा, बिल्कुल भी डरना नहीं हमें। सो √2 इक्वल टू, है ना, कोसेक पाई बाई 4। डर बहुत जाते हो आप, डर रहे हो, डरना नहीं है, देखो इसके बीच में आ गया। सो पाई बाई 4, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4। सो हियर वी कैन से पाई बाई 4 बिलोंग्स टू, रीजन भी तो लिखना पड़ेगा, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस 0। डन। सो दिस आर द क्वेश्चन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 11 12 भी सेम क्वेश्चन है, कैसे करना है देख लो फटाफट। चलो टाइम तो है थोड़ा, 5 मिनट में हो जाएगा। सो हियर क्वेश्चन नंबर 11, हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan inverse 1, tan inverse 1 प्लस cos inverse minus 1/2 प्लस sin inverse minus 1/2 तो देखो ये कुछ नहीं, अब तक जो सम्स 1 2 3 के फॉर्म में कर रहे थे, ऐसे 3 क्वेश्चंस साथ में दे दिए हैं, है ना, तो तीनों को सेपरेटली सोल्व करो, उसके बाद तीनों का एडिशन करो, तुम्हें आंसर मिलेगा। सो व्हाट इज tan inverse 1? tan inverse 1, so tan inverse 1 is nothing but the tan inverse 10 pi by 4। so tan inverse 10 pi by 4 को हम लिखेंगे pi by 4 because this pi by 4 belongs to, है ना, प्रिंसिपल रेंज ऑफ tan inverse, that is minus pi by 2 pi by 2। तो इसका आंसर आ गया pi by 4। अभी इसको सोल्व करो, cos inverse minus 1/2। so what is cos inverse minus 1/2? it's a cos inverse minus cos pi by 3, cos inverse cos minus pi by 3। what is cos inverse minus cos theta? pi minus theta। so this is equal to pi minus pi by 3, है ना, ये सब हम डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक अपना यूज कर रहे हैं। 3 pi minus pi, so it's a 2 pi by 3। तो इसका आंसर आ गया 2 pi by 3। अब इसको सॉल्व करो, sin inverse minus 1/2, so this one is sin inverse minus sin pi by 6। so what is sin inverse minus sin theta? sin inverse minus sin theta is minus theta, so this is equal to minus pi by 6। तीनों को सोल्व कर दिया, तीनों का क्या करना है, एडिशन, तो एडिशन कर देते हैं। सो नाउ tan inverse 1 is pi by 4 plus cos inverse minus 1/2 which is 2 pi by 3 plus sin inverse minus 1/2 which is minus pi by 6। तीनों का एडिशन के लिए 4 3 6 का एलसीएम 12 आएगा, 4 3 जा 12, दिस वन इज 3 pi, 3 4 जा 12, इट्स 8 pi, 6 2 जा 12 minus 2 pi। एडिशन सब्ट्रैक्शन करो तो क्या होगा, 11 minus 2 9 pi by 12, और 3 से कटिंग भी होगा, 3 3 जा 3 pi by 4। डन। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो इसके बाद 12th क्वेश्चन करते हैं, 12th, है ना, 12th को भी कंप्लीट कर देंगे। चलो सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12 एमसीक्यू। अच्छा 11 था, अच्छा ये 12 नंबर, उसके बाद एमसीक्यू है। 12 cos इनवर्स, हियर वी आर गिवन cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो देखो cos इनवर्स 1/2, cos की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, pi by 3। सो दिस वन इज cos इनवर्स cos pi by 3 प्लस 2 sin इनवर्स sin pi by 6। तो दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स cos pi by 3, तो pi by 3 इसकी प्रिंसिपल रेंज में आ गया, प्लस 2 इंटू sin इनवर्स sin pi by 6, ये भी प्रिंसिपल रेंज में आ गया, है ना, रीजन लिखेंगे दोनों का। सो pi by 3 प्लस pi by 3, दिस इज इक्वल टू 2 pi by 3। डन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर रीजन लिखेंगे ना, pi by 3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to pi, दिस वन इज क्लोज इंटरवल minus pi by 2। डन। उसके बाद 13th क्वेश्चन एमसीक्यू। डेफिनेशन है देखो, इफ sin इनवर्स x
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई. So sin inverse x equal to y. Sin का आउटपुट क्या आ रहा है y. तो y क्या होती है? Y is nothing but the range of sin inverse. Range of sin inverse x. तो sin inverse x की रेंज क्या होती है? रेंज होती है -π/2 cos interval -π/2 plus π/2. So here answer is or y will be from -π/2 less than equal to y less than equal to π/2. Done. ये जो आंसर है वो क्वेश्चन आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. डन. उसके बाद 14th इज tan इनवर्स √3. यहां पर ही लिख देते हैं tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स 2. sec इनवर्स 2. चलो चला गया इक्वेशन. -2 था शायद. हाँ -2. तो करो सॉल्व इसको. tan इनवर्स √3. सो इट्स tan इनवर्स 10 π/3 माइनस sec इनवर्स माइनस sec π/3. डन. तो क्या होगा? tan इनवर्स 10 π/3 इज π/3 माइनस इसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. इट्स अ पाई माइनस π/3. So π/3 minus 2π/3. π/3 minus 2π/3 that is equal to -π/3. Done. ये था हमारा ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी. Done. So this is our exercise 2.1. Clear students? चलो.